fact is कि जो ideological support है, that is purely coming from the आम आदमी पार्टी. इन्होंने पैसा इकट्ठा किया from the likes of दल खालसा. परमजीत सिंह पम्मा है, गुरचरण सिंह है, शमशेर सिंह है. इन लोगों के साथ इनके एक टैक्स रहे. इनका जो एक बड़ा सॉलिड इनको सपोर्ट यूके के पार्लियामेंटेरियन से मिला, कैनेडियन पार्लियामेंटेरियन से मिला. ये एक व्हेन अरविंद केजरीवाल सेज कि जी मेरे को ये टेररिस्ट बोल रहे हैं और क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार कर लेते अगर मैं देश को तोड़ने की बात करता हूँ, अगर 10 साल से इनको पता था. तो देश को तोड़ने की बात करना तो एक तरफ की बात है, देश को जिन्होंने तोड़ दिया, जिन्होंने इसी भारत के अंदर जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जैसा एक बहुत बड़ा नरसंहार किया, उन लोगों को किसने अरेस्ट किया? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने अरेस्ट किया? उसने तो बल्कि देश के 3 टुकड़े करे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया. किसने अरेस्ट किया? तो दिस टेररिज्म इज नॉट लिटरली द टेररिज्म जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि यू आर गेटिंग इनटू वायलेंस, यू आर किलिंग पीपल. दिस इज आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. जब टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात होती है, जब आप कहते हैं कि अफजल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल जिंदा है, तो दिस इज आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. जब कोई बोलता है कि साहब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह, दिस इज आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. वो कोई बंदूक उठा के नहीं चले हुए लाइक द नक्सल्स या जो मेन स्ट्रीम आप कह लीजिए आतंकी संगठन है उनको लेके. दिस इज आइडियोलॉजिकल. सत श्री अकाल, जय हिंद, गुड मॉर्निंग. It is a pleasure to be on your channel, Sangam Talks. We essentially would be touching 4 broad points. Number one is that the Aam Aadmi Party government in Punjab, being a border state, a sensitive state, a state which has seen turmoil and which has seen disturbance in the past, and the present government in Punjab could be national security nightmare, or in fact even a national security disaster. In days and months to come, you can start seeing those telltale signs. Number one. Number two, we'll be touching upon their association with the Khalistanis and the separatists per se. Number three, would Bhagwant Mann be another, let's say, MMS Manmohan Singh? And what will be the long-term implication for Punjab and India when they continue to be in power? So let me begin by saying that there was hardly any, let's say, discussion about Khalistan prior to 2017 elections in Punjab, the previous elections in Punjab, when Arvind started toying with the idea of hobnobbing with the Khalistanis. Somebody from his team would go to North America, would go to Canada, would go to England, Europe, and other parts of the world to align themselves with the Khalistani elements. That is number one. Number two is him sleeping over a known Khalistani's home, his residence, and knowing fully well that this is Gurvinder Singh of Moga. Gurvinder was jailed for heinous crimes, including murder, and he was one person who would incited Hindu-Sikh riots in Punjab. So, and you know how it ended up, because most of the time Hindus were at the receiving end in Punjab. So when it was a riot created by the Khalistan. So there is a similar situation which is brewing in Punjab since the last, let's say, a few years. In fact, post the anti-farm laws protest, what has happened is that the Khalistani elements, the anti-national elements, all those elements who were supported by foreign agencies or foreign powers, have put their strengths together, and it's a sequence to it. It's not just an isolated incident. कि ये खालिस्तानियों के साथ मिलके काम कर रही हैं. It is, in fact, if you take in account how anti-CAA protests began in Delhi, और उनके receiving end पे कौन था, who were the targeted people, the businesses, the individuals, even government servants, वो कौन थे? Then you saw anti-farm law protests coming in. Anti-farm law protests में आपने देखा कि कैसे आम आदमी पार्टी ने पूरा सपोर्ट दिया वहां पे, चाहे बिजली मुफ्त देने की बात हो. आपने देखा कैसे एंटी-सीए प्रोटेस्ट के वक्त भी
और आपने देखा कैसे एंटी फार्म लॉज प्रोटेस्ट के वक्त भी जिस तरीके से आम आदमी पार्टी की गवर्नमेंट ने प्रोटेस्टर्स को सपोर्ट किया, वहाँ पे उनको वाईफाई कनेक्शंस देने का काम किया, वहाँ पे उनको तमाम तरीके की सुख-सुविधाएँ देने का प्रयास किया। They tried and made them comfortable there. As a matter of fact, not just the Aam Aadmi Party government, but even the central government, on the directions of the Supreme Court, gave them all the benefits जो जो उनको वहाँ पे चाहिए थे, चाहे वो सैनिटेशन को लेके था, चाहे वो कोविड टेस्टिंग को लेके था, चाहे वो कोविड के लेटर इन टाइम वैक्सीनेशन के एडमिनिस्ट्रेशन को लेके था. So there were all sorts of things which are being facilitated there. But the fact is कि जो ideological support है, that is purely coming from the Aam Aadmi Party. इन्होंने पैसा इकट्ठा किया फ्रॉम द लाइक्स ऑफ दल खालसा. परमजीत सिंह पम्मा है, गुरचरण सिंह है, शमशेर सिंह है. इन लोगों के साथ इनके एक टैक्स रहे. इनका जो एक बड़ा सॉलिड इनको सपोर्ट यूके के पार्लियामेंटेरियन से मिला, कनेडियन पार्लियामेंटेरियन से मिला. ये एक व्हेन अरविंद केजरीवाल सेज कि जी मेरे को ये टेररिस्ट बोल रहे हैं और क्यों नहीं मुझे गिरफ्तार कर लेते अगर मैं देश को तोड़ने की बात करता हूँ. अगर 10 साल से इनको पता था तो देश को तोड़ने की बात करना तो एक तरफ की बात है. देश को जिन्होंने तोड़ दिया, जिन्होंने इसी भारत के अंदर जिन्होंने डायरेक्ट एक्शन डे जैसा एक बहुत बड़ा नरसंहार किया, उन लोगों को किसने अरेस्ट किया? मोहम्मद अली जिन्ना को किसने अरेस्ट किया? उसने तो बल्कि देश के 3 टुकड़े करे, ईस्ट और वेस्ट पाकिस्तान बनाया. किसने अरेस्ट किया? तो दिस टेररिज्म इज नॉट लिटरली द टेररिज्म जिसको हम लोग डिफाइन करते हैं कि यू आर गेटिंग इनटू वायलेंस, यू आर किलिंग पीपल. दिस इज आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. जब टुकड़े-टुकड़े गैंग की बात होती है, जब आप कहते हैं कि अफ़ज़ल हम शर्मिंदा है, तेरे कातिल ज़िंदा है, तो दिस इज़ आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. जब कोई बोलता है कि साहब भारत तेरे टुकड़े होंगे इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, दिस इज़ आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. वो कोई बंदूक उठा के नहीं चले हुए लाइक द नक्सल्स या जो मेनस्ट्रीम आप कह लीजिए आतंकी संगठन है उनको लेके. दिस इज़ आइडियोलॉजिकल टेररिज्म. और एक और बड़ा उदाहरण है जो 1928 के अंदर 1928 के अंदर इजिप्ट के अंदर एक स्कूल के टीचर ने एक मुस्लिम ब्रदरहुड करके शुरू किया था. आज इवन टुडे आज भी कई मुल्कों में वो मेनस्ट्रीम पॉलिटिक्स में है. दे हैव गॉन बियॉन्ड इजिप्ट. दे आर इन मेनस्ट्रीम कंट्रीज. और दूसरा जो है आप देखिए एक इतना बड़ा डिबेट छिड़ा था, आपको याद होगा जब डोनाल्ड ट्रंप ने कहा था कि वेदर मुस्लिम ब्रदरहुड शुड बी बैंड एंड शुड बी डेजिग्नेटेड एज अ टेररिस्ट ग्रुप और नॉट. तो ये आइडियोलॉजिकल जो कहीं से सपोर्ट मिलता है या आइडियोलॉजिकल कवर फायर मिलता है, तो दिस आल्सो इज अ फॉर्म ऑफ एक्सट्रीमिज्म वेयर यू behind closed doors discuss how you can achieve your targets or your motives. और मैं अभी थोड़ी देर में आपको बताऊंगा कि मैं कैसे इन चीजों को रिलेट कर रहा हूँ. और ओपनली यू टेक द कवर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन और आप ये जो डेमोक्रेटिक वैल्यूज हैं हमारे देश की उसको आप कवर लेके और उसके पीछे आप छुप के ये तमाम तरीके की राजनीति करते हैं. एंड देन यू टॉक अबाउट कि जी अगर मैं स्वीट आतंकवादी हूँ, अगर देन यू नो यू आर एनीवेज आइदर यू आर आइडियोलॉजिकल टेररिस्ट और यू आर अ टेररिस्ट विद अ गन इन योर हैंड और यू कॉल योरसेल्फ व्हाटएवर स्वीट टेररिस्ट. आपने जिस मोमेंट आपने देशद्रोहियों के साथ हाथ मिला लिया, आपने उन ताकतों के साथ एक समझौता कर लिया कि जो इस देश को तोड़ने की बात करते हैं, इस देश के टुकड़े करने की बात करते हैं, दैट वेरी मोमेंट you are you should be designated as a anti-national. और आपको within hearts of hearts, you know, अरविंद में however portray himself in the public stage, बट अंदर खाते उसको भी पता है कि वो हम लोग जो बात कर रहे हैं या वो जो कह रहा है वो कहाँ जा रही है, किस दिशा में जा रही है. और ये बात यहाँ पे खत्म नहीं होती. इसके बाद एसएफजे सिख फॉर जस्टिस के गुरपतवंत पन्नू है. गुरपतवंत पन्नू ने वाजे तौर पे कहा है कि हमने पैसा दिया है. हमने से उसकी मुराद है कि जो खालिस्तानी आइडियोलॉग्स हैं उन्होंने पैसा दिया है, उन्होंने इसको ग्राउंड सपोर्ट दिया है. और 2017 से लेकर 2022 के बीच में पिछले 5 साल ही हैज टॉयड विद द आइडिया. इन लोगों ने निरंतर खालिस्तानियों के साथ संपर्क बना के रखा है. इन लोगों ने निरंतर उनसे सपोर्ट लिया है. ये पीक पे तब गए, इनका फंडिंग जब इंक्रीज हुआ, जब इन्होंने सपोर्ट दिया, वो सपोर्ट लिया भी. तो ये वो समय था जब ये फार्मर्स एजिटेशन जो तथाकथित चल रहा था, उस वक़्त इन्होंने सपोर्ट लिया भी, सपोर्ट दिया भी ज़मीनी स्तर पे. और जितना इन्होंने आज तक उनसे बेनिफिट लिया पिछले 5-7 साल में, पॉलिटिकली, फाइनेंशियली या और तमाम चीज़ों को जो उनके एजेंडाज़ उनको आगे बढ़ाने के लिए, तो नाउ व्हेन दे आर इन पावर इट इज़ पे बैक टाइम फॉर देम. और मैं आई हैव ऑलवेज मेंटेन्ड दिस दैट
Khalistan is a part of a larger plan of the ISI, which is the K2 plan, is the Kashmir and Khalistan. So Khalistan is a brainchild of the Pakistani intelligence agency to destabilize and balkanize India. भारत के टुकड़े करने के लिए, भारत को destabilize करने का उनका एक सीधा सा उनका एक प्लान है। और जो खालिस्तानी, चाहे वो एसएफजे के हों, चाहे और तमाम लोग हों, जो पाकिस्तानी आईएसआई के पिट्ठू हैं या पाकिस्तानी आईएसआई से पैसे लेके ऑपरेट करते हैं या दे आर ऑन देयर पेरोल्स, और उनसे सारा सपोर्ट आता है। इफ यू रिमेंबर, ये जो पीछे चला था रेफरेंडम 2020 का मामला, वो सारा तमाम जो है, देयर वाज अ एक्स आर्मी ऑफिसर पाकिस्तानी आर्मी का who was running this entire show, and the address was that of Lahore. तो ये आप जब खालिस्तानी के साथ जुड़ते हैं और खालिस्तानी इंटर्न आईएसआई के साथ जुड़े हुए हैं, और दूसरी जानिब जो है, दूसरी तरफ जो है, आप ये एडमिट करते हैं कि आपने एक सीआईए की फ्रंटल ऑर्गेनाइजेशन से फंडिंग लिया, आपने पैसा लिया है फोर्ड फाउंडेशन से, और तीसरी तरफ आपको ये पता है कि द चाइनीज आर इन कंप्लीट सपोर्ट ऑफ द पाकिस्तान आर्मी, एंड चाइनीज ऑल्सो वांट टू डिस्टेबलाइज इंडिया। वो चाहते हैं कि इंडिया की तरफ से टूटना शुरू हो। और पाकिस्तानी हैं, चाइनीज हैं, इवन द वेस्ट। और एक बड़ी दिलचस्प मैं आपको बात बताता हूँ, आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल वुड हैव पेड अटेंशन टू दिस। पूरी दुनिया के अंदर तमाम जितनी सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स है, या पूरी दुनिया के अंदर तमाम जितने ऐसे आप कह लीजिए कि रेवोल्यूशंस चलती हैं, वो सब लोग जाके वेस्ट में बैठे हैं। चाहे वो बलोच लिबरेशन की बात हो, दे आर इन द वेस्ट। चाहे वो कश्मीरियों की बात हो, दे आर इन द वेस्ट। चाहे वो सिंधियों की बात हो, दे आर इन द वेस्ट। चाहे ये खालिस्तानियों की बात हो, दे आर इन द वेस्ट। तो वेस्ट का टोटल सपोर्ट जो है, वो इट इज टू कीप द वर्ल्ड इन अ सर्टेन स्टेट, which is, let's say, the West should remain solid, or against the wishes and desires of the West, Russia and China today are solid states. Solid state से मेरी मुराद ये है कि ना उनको आप मेल्ट डाउन कर सकते हैं, ना आप उनको जेली स्टेट में ला सकते हैं। और इंडिया एंड पाकिस्तान, दे वांट द वेस्ट, दैट इज दे वांट आवर कंट्रीज टू बी इन अ जेली स्टेट। दे डोंट वांट अस टू स्टेबलाइज, दे डोंट वांट अस टू मेल्ट डाउन लाइक बटर, कि पिघल के एकदम ही जो है ना अफगानिस्तान बन गया, या पिघल के एकदम ही आप इट गेट्स टू अ बॉयल। सो ये जो है, ये इनका एक मौकफ रहता है हमेशा। तो इसके अंदर आइदर इट इज आम आदमी पार्टी, और देयर आर एनी अदर ऑर्गेनाइजेशन इंक्लूडिंग नक्सल ऑर्गेनाइजेशन, जिनको चाइनीज से सपोर्ट मिलता है पैसे को लेके, या कुछ सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स चलती हैं या इंसर्जेंट मूवमेंट्स चलती हैं नॉर्थ ईस्ट के अंदर, उनको चाइना से पैसा आता है, उनको चाइना से वेपन आते हैं। और तमाम तरीके के लोग हैं उनके साथ। दे आर, मतलब मैं एक बात मैंने कही थी कि ये ना, चाहे नीचे दिखने के लिए किरदार अलग अलग हों, चाहे वो आम आदमी पार्टी के अरविंद केजरीवाल हो, कोई हो, ये कठपुतली के जो धागे हैं ना, वो एक ही आदमी के हाथ में है। दे आर बीइंग कंट्रोल्ड बाय वन इंडिविजुअल। और अरविंद ने, जब से आप देखेंगे कि इंडिया अगेंस्ट करप्शन आईएसी का मूवमेंट चला था, ये तमाम धीरे 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 ही इज मूव टू अ लेवल वेयर he has lost his comrades, he's lost his जो फाउंडर मेंबर्स थे, चाहे वो कुमार विश्वास की बात हो, चाहे अगर हम इफ वी ट्राई एंड रिस्ट्रिक्ट आवरसेल्व्स टू पंजाब, देन आप देखेंगे सुच्चा सिंह छोटेपुर वाज हिज स्टेट प्रेसिडेंट, आम आदमी पार्टी पंजाब 2017 में, जस्ट बिफोर इलेक्शन ही रिमूव्ड हिम फ्रॉम दैट पोजीशन। उसके बाद इनके पास खैरा है, खैरा से पहले इनके पास एचएस हुल्का थे, उससे पहले इनके जो पटियाला से महारानी प्रनीत कौर पर आने वाले डॉक्टर धर्मवीर गांधी थे। सो ही लॉस्ट कॉमरेड्स इन द प्रोसेस, एंड देयर इज नो एक्सेप्शन। सबने ये बोला है कि इनका जो ऑपरेट करने का तरीका है बड़ा फासिस्ट तरीका है, इनका ऑपरेट करने का तरीका बिल्कुल डिक्टेटोरियल तरीका है। ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडीज इंटरवेंशन, ही डज नॉट एक्सेप्ट एनीबॉडीज एडवाइस। और उसी नाते से मैं कह रहा था कि जो भगवंत का जहां तक सवाल है, Bhagwant is somebody who would not really or very easily get cowed down by केजरीवाल। बट जब बात आई राज्यसभा नॉमिनेशंस की, सो उस वक्त कहीं ना कहीं मैंने महसूस किया कि जो मेरा असेसमेंट था भगवंत को लेकर, दैट वाज वेरी वेरी रॉन्ग, एंड आई वाज प्रॉब्ली नॉट स्पॉट ऑन विद भगवंत। मैं ये सोच रहा था कि ही विल प्रॉब्ली ट्राई एंड रन द स्टेट टू हिज वेज ऑफ वर्किंग, रादर वो ही रियली गॉट बेंट ओवर, एंड somebody like
ये मिस्टर अरोड़ा, मिस्टर संजीव अरोड़ा। तो ये जो मिस्टर अरोड़ा हैं, इनको मेरा ख्याल है कि सेबी ने बैन किया हुआ है 3 साल के लिए फॉर इनसाइडर ट्रेडिंग। देखिए राज्यसभा सीट्स जो हैं वो अक्सर बिकती आई हैं, ये कोई नई बात नहीं है, ये वीव ऑल हर्ड ऑफ दिस बिफोर और ये सब हम सुनते आए हैं। बट सेलिंग द इंटरेस्ट्स ऑफ पंजाब इज़ नॉट गोइंग टू बी ईज़ी बिकॉज़ देखिए आप बार-बार आप भगवंत की अगर आप स्पीचेस सुनेंगे प्री इलेक्शंस तो यू विल रिमेंबर कि भगवंत बार-बार ये कहते थे कि अगर खजाना खाली है उसको खजाना क्यों कहते हो? उसको आप पीपा बोलिए। ये खाली है तो पीपा बोलिए। तो जब इन्होंने चीमा को मंत्री बनाया जैसे फाइनेंस मिनिस्टर, तो उन्होंने अभी इंटरिम बजट पेश किया है फॉर अप्रैल टू जून। तो अब वो 32,000 करोड़ या 34,000 करोड़ का एक बजट पेश कर रहे हैं, तो हैज़ ही मेंशन्ड हिम टू बी हिज़ पीपा मंत्री? ही वुड से ही इज़ हिज़ खजाना मंत्री, ही विल से ही इज़ हिज़ फाइनेंस मिनिस्टर। और अरविंद ने भी जब इलेक्शन से पहले कहा था, देखिए जी हमारे पास बड़ा एक सिंपल सा वो है कि पंजाब का 1,70,000 करोड़ का बजट है हमारा और बजट में हम ये मान के चलते हैं कि 20% जो है वो करप्शन होती है। तो 34,000 करोड़ तो हमारे को वहाँ से हम बचा लेंगे। फिर 20,000 करोड़ रुपए जो है वो हम बचा लेंगे जो माइनिंग के अंदर से चोरी होती है, उसको हम कवर करके। तो अगर आपके पास 54,000 करोड़ का कहता है वो तो मेरे पास शुरू करने से पहले ही मेरे पास 54,000 करोड़ रुपया पड़ा हुआ है। सो दैट इज़ वन। अच्छा दूसरा इन्होंने कहा कि हम हर महिला को 18 साल से ऊपर की पंजाब में वी विल पे देम ₹1,000 अ मंथ। सो लेट्स से उससे 10 से 12,000 करोड़ रुपए का उनका आपका एनुअल बर्डन आता है। तो सिमिलरली इन्होंने जितनी घोषणाएँ करी हैं, उसके अंदर इन्होंने मोहल्ला क्लिनिक कहे हैं कि हम साढ़े 16,000 मोहल्ला क्लिनिक या पिंड क्लिनिक या वार्ड क्लिनिक खोलेंगे पंजाब में। वी हैव सीन क्या डिज़ास्टर इन्होंने किया है दिल्ली में, जो 1000 क्लिनिक खोले थे उसमें इन्होंने 210 के आस-पास करोड़ रुपए खर्चे थे। तो गोइंग बाय दैट नंबर तो ये करीबन 3,500 करोड़ रुपए का एक्सपेंस आता है मोहल्ला क्लिनिक्स पे। और उसके बाद जो इन्होंने 80 लाख तकरीबन कंज्यूमर्स हैं पंजाब में जिसमें उन्होंने कहा है कि हम आपकी जो बिजली की कंजम्पशन है, उसका जो हम आपका वो माफ करेंगे 300 यूनिट्स तक का दैट दैट वर्क्स आउट टू अबाउट 5,000 करोड़ रुपीस। और जो ऑलरेडी डेट में है पावर कॉर्पोरेशंस पंजाब में दैट्स इन द ट्यून ऑफ अबाउट 10,000 करोड़। तो जो इन्होंने अनाउंसमेंट्स करी हुई हैं फ्रीबीज की, दे अमाउंट टू अबाउट 45,000 करोड़ अ ईयर। 45,000 करोड़ के इनके फ्रीबीज हैं और जो इनके आउटलेज हैं और उनके पास जो एनुअल इनका जो रेवेन्यू डेफिसिट आ रहा है, वो रेवेन्यू डेफिसिट तो खैर इनका जो कैपिटल एक्सपेंडिचर की बात नहीं करते क्योंकि 1,70,000 करोड़ पूरी स्टेट का बजट है। उस 1,70,000 करोड़ में से तकरीबन 70,000 से लेके 80,000 करोड़ रुपया तो आई थिंक मोर देन 50% जो है उसके अंदर आपका सैलरी बिल है। तो सैलरी बिल में कौन-सा 20% करप्शन होता है? आई फेल टू अंडरस्टैंड। बात ये है कि आपका कैपेक्स जो है, कैपेक्स के अंदर अगर आप कुछ पैसे खर्च रहे हो, उसमें भी अगर आपका इंफ्रा में कुछ जा रहा है, उसके अंदर आप लूप होल्स को प्लग कर सकते हो। ये एमएलएज़ की सैलरी प्लग करना दैट इज़ नॉट गोइंग टू हेल्प। और जो अब बजटरी आउटले दिया भी है, उसके अंदर इन्होंने दे गिवन द लॉयंस शेयर टू द एजुकेशन दैट्स अबाउट 4,300 करोड़ रुपीस। 42-4300 करोड़ रुपए इन्होंने उसमें दिया है। उसके बाद 1100 करोड़ रुपए इन्होंने हेल्थ में डाला है। तो आई फेल टू अंडरस्टैंड कि अगर आपके पास फरेब, झूठ और मक्कारी के अलावा अगर कोई प्लान था पंजाब को रूल करने का, तो दैट शुड हैव बीन ब्रॉट आउट नाउ। आप अब समय था आपको दिखाने का बजाय इसके कि आप बड़े-बड़े वायदे करें और उसके बाद आप जो है यू रीच द प्राइम मिनिस्टर आप प्राइम मिनिस्टर साहब से जाके बोलेंगे साहब हमारे को आप जो है 50,000 करोड़ का एनुअल पैकेज दे दीजिए वो भी 2 साल के लिए एंड देन यू एसोसिएट इट विद नेशनल सिक्योरिटी। अब 43,000 करोड़ का आपका अनाउंसमेंट है, जो आपको बर्डन डालेगा। फिर आपने कहा कि जी 35,000 मुलाजिम जो है उनको हम पक्का करेंगे। आपका पहले 3 लाख करोड़ का डेट है, आपके पास जो आपका कलेक्शन है उसको इंक्रीज़ करने के लिए कोई लेआउट प्लान नहीं है क्योंकि आपने कहा था कि ना तो हम कोई नया टैक्स लगाएँगे और ना ही हम प्रेज़ेंट जो टैक्सेस हैं उसके अंदर स्ट्रक्चर के अंदर कोई चेंज करेंगे, ना हम टैक्स बढ़ाएँगे। तो अगर आप टैक्स बढ़ा नहीं रहे, आप नया टैक्स लगा नहीं रहे, तो आपका इवेंचुअल कलेक्शन आएगा कहाँ से? मतलब देन यू आर टोटली डिपेंडिंग योरसेल्फ ऑन हाउ यू गेट द मनी फ्रॉम द सेंटर। और अगर सेंटर से ही पैसा लेके सरकार चलानी थी, तो इतने बड़े-बड़े वादे किस बात के थे? सो
फिजिकल उसके ऊपर भी आई डोंट सी कि ये कहीं पूरे उतरेंगे। तो चाहे वो 20 लाख रुपए तक का इलाज कह रहे हैं सरकारी हॉस्पिटल्स में हम फ्री करवाएँगे, चाहे वो 24 घंटे बिजली देने की बात करें। आई डोंट नो हाउ मेनी पीपल नो बट बिजली के कट ऑलरेडी लगने चालू हो गए हैं एंड इट इज़ नॉट इवन समर येट। अभी तो अप्रैल भी नहीं हुआ, अभी तो मार्च ही चल रहा है ना। तो बट स्टिल अभी भी देयर आर पावर कट्स इन पंजाब। सो दिस इज़ हाउ अरविंद्स बीइंग एट द हेल्म ऑफ पावर। और एक इसके अंदर बड़ी दिलचस्प बात है जो मैंने हल्का सा टच करके छोड़ दिया था, दी एंटी-सीएए प्रोटेस्ट्स। और मैंने एक बात थोड़ी-सी टीज़ की थी कि मुस्लिम ब्रदरहुड की। सो द आइडियोलॉजिकल जो जो बातें हैं, चाहे वो आपकी डफली गैंग हो, चाहे आपके वो लिबरल गैंग हो, चाहे वो आपके द लाइक्स ऑफ योगेंद्र यादव हो, these people have been tasked with a responsibility of brainwashing a large number of people, जहाँ पे लोगों को ये सपना दिखाया जाएगा कि भई आपका एक अलग मुल्क हो सकता है, आप एक अलग एंटिटी हो सकते हैं। और जैसा मैंने पहले कहा शुरू में कि किसी ने भी मोहम्मद अली जिन्ना को जेल में नहीं डाला, इवन आफ्टर डायरेक्ट एक्शन डे। किसी ने भी मोहम्मद अली जिन्ना को, बिकॉज़ उनके पीछे उतने लोग खड़े हो गए थे आके। और वो तमाम लोग जिन्होंने पाकिस्तान की डिमांड की थी, उनमें से अधिकांश लोग तो पाकिस्तान में कभी गए भी नहीं। इनफैक्ट मैं नाम नहीं लेना चाहता, देयर आर पीपल जिनके जो वंशज हैं वो आज समाजवादी पार्टी में हैं, जिनके दादा फौत जो हैं, वो उन्होंने पाकिस्तान के लिए पूरी एडवोकेसी करी थी और वो इंडिया में रह गए थे। दे नेवर वेंट टू पाकिस्तान। तो ये आइडियोलॉजिकल ब्रेन वॉशिंग जो है, वो वही एक सपना कह लीजिए, वही एक बीमारी जो है। अभी 50,000 करोड़ मांगे, मुझे लगता है कि इनको पहले साल में कुछ उसमें से अधिकांश मिल जाएगा, बट विद ऑडिट चेक्स एंड बैलेंसेस वो पैसा सेंट्रल गवर्नमेंट को देना भी चाहिए। मुझे लगता है इन द फेडरल स्ट्रक्चर ऐसा नहीं होना चाहिए कि वहां पे अगर एक नॉन आइडियोलॉजिकली अलाइंड गवर्नमेंट है तो उसको पैसा ना दे। दे शुड गिव देम मनी, बट एक चेक्स एंड बैलेंसेस के साथ कि आपको ये फिजिकल जो पैरामीटर्स हैं, डिसिप्लिन हैं, आपको मेंटेन करने पड़ेंगे। ये फ्रीबीज में आप पैसा नहीं फेंक सकते। आपको कहीं पे डेवलपमेंट है उसके लिए लगाएं, आप कैपिटल एक्सपेंडिचर में डालें, या आपके कोई सैलरी बिल्स है। अभी आप देखिए दिलचस्प क्या है कि पंजाब का करीबन 11 साढ़े 11,000 करोड़ रुपए पर एनम जो है वो सिर्फ इंटरेस्ट रीपेमेंट में जा रहा है। तो अगर आपका 1,70 का बजट है तो आप उसको 1,60 पकड़ के चलिए। 1,60 में से भी अगर आप 50 मांग रहे हैं तो 1,10 कहाँ से लाएंगे? 1,10 में से भी आपके पास वो पैसा पूरा नहीं हो रहा, फिर आप 43,000 करोड़ का नया बर्डन डाल रहे हैं। सो मतलब इट इज नोवेयर नियर। अच्छा होगा क्या इवेंचुअली Aparna ji, when these things don't fall in place, so there will be more disgust, disgruntlement, and you know hate against the central government कि जी पंजाब का हक मार लिया, पंजाब के पैसे नहीं दे रहे, हमारे को ट्रेड करना चाहिए, हमारे को अगर आप पैसे नहीं दे सकते, हमारे को आप इंडिपेंडेंट कर लो। फिर वो नए नए वादे कि अगर पंजाब ये कर लेगा तो वो हो जाएगा, ऐसा कर लेगा तो वैसा हो जाएगा, हमारा ट्रेड पाकिस्तान से खोल दीजिए, हम पाकिस्तान के रास्ते जो सिद्धू वाज टॉइंग विद द आइडिया कि हम पाकिस्तान से ट्रेड कर लेंगे। पाकिस्तान आपसे ट्रेड करना चाहता है क्या? Pakistan will never want to depend on India. In fact, Pakistan has destroyed its economy. उन्होंने महंगी चीजें बाहरले मुल्कों से खरीदना प्रेफर किया बने से इसके कि वो इंडिया पे डिपेंडेंट हो किसी भी तरीके से। तो ये जो चीजें हैं, ये दिस विल इवेंचुअली ब्रिंग दैट डिस्गस्ट इन द यूथ। और जब ये जो खालिस्तानी आइडियोलॉग्स हैं, जो खालिस्तानी विचारधारा या सोच के लोग हैं, जब इन लोगों के साथ आप यू हैव बीन टुगेदर विद देम, आप इनके घरों में रहे हुए हैं, आपने इनसे पैसे ले रखे हैं, और वो खुद क्लेम कर रहे हैं, लिख के बोल रहे हैं, वो बाय वे ऑफ स्टेटमेंट्स कह रहे हैं कि तुम्हारे को जिताने में हमने मदद करी है, हमने पैसा दिया है तुम्हारे को, हमने तुम्हारे को ग्राउंड सपोर्ट दिया है, तुम्हारे पास कोई तुम्हारा कार्डर नहीं था, बावजूद उसके तुम जीते हो। तो ये नहीं है कि कहीं पे भी इस तमाम में जो सबसे वरीसम चीज है, जिस चीज का सबसे ज्यादा फिक्र होता है सुन के, वो ये नहीं है कि ये लोग क्लेम कर रहे हैं कि इन्होंने पैसा ले लिया खालिस्तानियों से। वो ये है कि आज तक अरविंद केजरीवाल ने एक बार भी झूठे मुंह से ये नहीं कहा कि आई डोंट सपोर्ट द आइडिया ऑफ खालिस्तान। आज तक अरविंद की तरफ से या भगवंत की तरफ से ये स्टेटमेंट नहीं आ गया कि हम नहीं चाहते खालिस्तान बने। ये सब बातें करना कि जी मैं स्वीट टेररिस्ट हूं और मैं कोई देश को तोड़ने की बात करता हूं तो मुझे गिरफ्तार कर लो। तो ये सारी चीजें दीज आर ऑल आई वॉशेस, बिकॉज आज से पहले भी जितने लोगों ने देश तोड़ा, कई बार देश टूटा, उनमें से कितनों को गिरफ्तार किया, स्पेशली ये आजादी के बाद से लेके अब तक जो लोग इन बातों को कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट आपको आई डोंट नो इफ यू नो दिस और नॉट, सुप्रीम कोर्ट की एक रूलिंग है जिसके अंदर सुप्रीम कोर्ट ने वाजे तौर पे कहा है कि खालिस्तान की डिमांड करना, एक सेपरेट स्टेट की डिमांड करना इज नॉट एन ऑफेंस, इट्स नॉट अ क्रिमिनल ऑफेंस।
उसके अंदर आपके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा दर्ज नहीं हो सकता। कई मुकदमे दर्ज हुए देशद्रोह के लोगों के ऊपर और उनको रिलीफ देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि पीसफुली डिमांड करने में कोई हमारे को एतराज नहीं है। और आप देखिए कितना खतरनाक ये ट्रेंड है कि एक मूवमेंट जो आज पीसफुली डिमांड करते 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 या वाजे तौर पे एक जिसे कहते हैं ऑफेंसिव मोड में ना आते हुए या वो जिसे कहते हैं एक्सट्रीम लेवल्स पे ना जाते हुए एक जब आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बेस खड़ा कर लेते हैं अपने लिए, एक आइडियोलॉजिकल सपोर्ट बेस तैयार कर लेते हैं, उसके बाद उनको रोकना कितना मुश्किल है या बिल्कुल नामुमकिन हो जाता है एक स्थिति पे जाके। और वही चीज जो है आप बंगाल में देख रहे हैं, वही चीज आपको अब आने वाले समय में पंजाब में दिखने को मिलेगी कि ये कह देना भर सुप्रीम कोर्ट का कि जी डिमांडिंग अ सेपरेट स्टेट ऑफ खालिस्तान इज नॉट अ क्राइम, इट डज नॉट अमाउंट टू ट्रीजन, देशद्रोह के बराबर नहीं है। तो ये चीजें इनकरेज करती, दीज आर द सॉर्ट्स ऑफ थिंग्स व्हिच एनकरेज। और जितनी बार भी ये बातें होती है कहेंगे जी गिरफ्तार कर लो, गिरफ्तार किस धारा में कर लो, जो सुप्रीम कोर्ट ने कह ही दिया कि इट्स नॉट अ क्राइम। और अगर वहां पे प्रोसेशंस निकलते हैं, अगर वहां पे लोग रैलीज निकालते हैं, यही सब कुछ तो हो रहा है। और वेस्ट में क्या हो रहा है, ये वोकिज्म क्या है वेस्ट का, मतलब आज जेंडर्स के अंदर 24 जेंडर 25 जेंडर हो रखे हैं। तो मतलब दे आर नॉट एबल टू डिफाइन कौन क्या है। तो अगर आप क्लियरली ये डिफाइन ही नहीं कर पाओगे कि आप जो कह रहे हो वो ट्रीजन है या नहीं, वो देशद्रोह है या नहीं, जो आप कह रहे हो वो देश को तोड़ने की बात है या नहीं, अगर आप सिर्फ यही बात कह के कि जी मेरे को गिरफ्तार कर लो, तो देश तो पहले भी टूटा है और तोड़ने वालों ने तोड़ा है। और वो सिर्फ नंबर्स के आधार पे, गिनती के आधार पे। आज जिस तरीके का 117 में से 92 का मैंडेट आम आदमी पार्टी को मिला हुआ है, अगर वो अपना कुनबा साथ रख लेते हैं और जिस तरीके की आइडियोलॉजी के ऊपर ये काम कर रहे हैं, तो डेफिनेटली आप देखेंगे आने वाले वक्त में कि ये जो सेपरेटिस्ट्स हैं, इनको इनको शय मिलेगी इन सेपरेटिस्ट्स को, क्योंकि दिल्ली के अंदर, नेशनल कैपिटल के अंदर यूएस का प्रेसिडेंट इंडिया आया हुआ था जिस वक्त ये वहां पे दंगे छेड़े इन्होंने। सो द पॉइंट इज के इनके लिए पंजाब एक बॉर्डर स्टेट है जहां पे लॉजिस्टिकल सपोर्ट जो है या आर्म ड्रॉपिंग हो, चाहे वो टनल्स के थ्रू हो, चाहे वो ड्रोन्स के थ्रू हो, वहां पे एक फिर भी पॉसिबिलिटी है। दिल्ली तक तो वेपन लेके आना बॉर्डर से और सब करना इज अ लिटिल डिफिकल्ट। वो दे स्टिल मैनेज टू डू अ मेजर प्रोटेस्ट इन दिल्ली। और वहां पे क्या उन्होंने आगजनी किया, एंड इट वाज नॉट इवन अ ट्रेलर, इट वाज अ टीजर कि ये क्या करने के लिए केपेबल है ये लोग, व्हाट आर दे केपेबल ऑफ। इट वाज मियरली अ टीजर। और माफ करना, आई डोंट वांट टू बी एन अलार्मिस्ट और स्पेशली ऑन ऑन अ सीरियस चैनल लाइक योर्स, बट मैं बता रहा हूँ कि अगर ये सब चीजें नहीं सुधरी, इन चीजों को अगर काबू में नहीं लेके आए, तो आप जितने आपके तमाम दोस्त रिश्तेदार हैं उनको कह देना कि यार वो या तो वेपन लाइसेंसेस अप्लाई कर लें या वो कम से कम अपनी डिफेंस के लिए कुछ एक वेपन्स घर में रख लें अपने, जो लीगली परमिटेड है, चाहे कोई तलवार है या कुछ और है। तो कम से कम गॉड फॉरबिड एक ऐसी स्थिति हो वहां पे आप कहीं ना कहीं अपने आप को डिफेंड करने की स्थिति में हो। बिकॉज ये लोग किस हद तक जा सकते हैं, किस स्तर तक जा सकते हैं, यू कांट इवन इमेजिन। आप देखिए कि जब ये किसानी आंदोलन, तथाकथित आंदोलन चल रहा था, उस किसानी आंदोलन के समय में बहुत से लोग वो नॉन सिक्स, यू नो, स्पेशली लेट्स से फ्रॉम द पीसफुल कम्युनिटी, उन्होंने पगड़ियां बांध बांध के अपने आप को, दे वर रिप्रेजेंटिंग देमसेल्व्स एज सिक्स। और अभी कई दिनों से एक वीडियो चल रहा है जिसमें यू कैन सी somebody in the attire of a निहंग नमाज पढ़ते हुए। तो इट, और मैं आपको फिर बता रहा हूँ कि ये एक बड़ा कॉमन साइट है, आई हैव सीन दिस विद माय ओन आईज, कि वो एक्टिवा का सीट के नीचे वो देयर इज अ स्टोरेज, तो उसके अंदर वो पगड़ी रख के नमाज पढ़ के वापस आएंगे और दोबारा पगड़ी रख के चल देंगे। सो दिस इज द कॉमन साइट एंड यू जस्ट डोंट नो हुज अ सिख हुज अ नॉन सिख। और वो सिख अटायर में आके, और वो कहीं पे कल को अगर किसी हिंदू टेम्पल के अंदर जाके या किसी हिंदू मंत्र या संत के साथ कोई ऐसी बात होती है, तो दे विल डेफिनेटली ट्राई एंड इंसाइट वायलेंस। एंड आइडेंटिटी बेस्ड रिलीजन्स जितने, जिनके मतलब अटायर से विजुअली आइडेंटिटी पर आप डिफाइन कर सकते हैं, सो देन इट इज डिफिकल्ट उस वक्त कि आप कैसे लोगों के इमोशंस को कंट्रोल करेंगे और कैसे आप लोगों को समझाएंगे कि ये जो कृत्य है, ये कर्म है, जो करने वाले हैं, इनके पीछे कौन लोग हैं, एंड हु आर द पीपल हु आर डूइंग इट। और ये हो गया एक जो बड़ा रीजन है जो इंटरनल डिस्टर्बेंस क्रिएट कर सकता है, नॉट जस्ट द नेशनल सिक्योरिटी नाइटमेयर बट इवन द इंटर, देयर कुड बी इंटरनल सिक्योरिटी नाइटमेयर। और अब आगे बात के जो इम्प्लीकेशंस हैं, लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशंस आम आदमी पार्टी की गवर्नेंस के जिस तरीके से ये चल रहे हैं, उस तरीके से अगर ये चलते रहे,
तो फॉर पंजाब एंड फॉर द स्टेट ऑफ इंडिया, भारत के लिए क्या उसके नेशनल सिक्योरिटी इम्प्लीकेशन है या लॉन्ग टर्म इम्प्लीकेशन है। देखिए क्या होता है कि अमरनाथ जी, अगर आपकी सोसाइटी के अंदर एक सौहार्द है, अगर एक एक हार्मनी है, तो दैट हार्मनी कैन कंटिन्यू फॉर मेनी मेनी इयर्स अनलेस इट इज डिसरप्टेड। बट जब आपकी सोसाइटी के अंदर एक अपैरेंट, एक वाज़े तौर पे दिखने वाली एक अगर डिवाइड क्रिएट हो जाती है ना, तो उस वॉइड को, उस डिवाइड को भरने में जनरेशंस लग जाती हैं। उसको ठीक करने में जनरेशंस लग जाती हैं। तो जैसा अभी पोस्ट एंटी फार्म लॉज प्रोटेस्ट में जो देखा है कि एक सेंटीमेंट, एक अलग किस्म का सेंटीमेंट एक ब्रू कर रहा है लोगों के अंदर, जो पंजाब के अगेंस्ट या स्पेसिफिकली सिखों के अगेंस्ट है। और उसको हवा देने वाले बहुत सारे लोग हैं। दे आर ओनली प्लेइंग टू द एजेंडा ऑफ द पाकिस्तानी आईएसआई। जब ये सेपरेटिस्ट की बात करते हैं, जब सिखों को हिंदुओं से अलग करने की बात करते हैं, एक ही संस्कृति से आने वाले, एक ही सनातन परंपरा से आने वाले दो अलग अलग शाखाओं के बीच में जब आप वेज क्रिएट करते हैं, तो वो फील होती है हर जगह। व्हेन यू थ्रो वाटर, जब आप पानी में एक पत्थर फेंकते हैं, वो रिपल्स आर क्रिएटेड, और वो दिखती भी है और वो महसूस भी होती है। तो वो रिपल्स आज महसूस की जा रही है, वो आज क्या मतलब, वो बहुत लंबे समय तक महसूस की जाएंगी। कई लोगों ने खुल के कहा कि जी साहब, हम गुरुद्वारे में नहीं जाएंगे और हम गुरुद्वारे में लंगर नहीं छकेंगे। हमको वी डोंट फील सेफ गोइंग टू द गुरुद्वारा साहब। अभी थोड़े दिन पहले एक लेबर है, महिला, उनके साथ दुर्व्यवहार हुआ, उनको मारा पीटा गया अपेरेंटली गुरुद्वारा साहब के अंदर, जिसके ऊपर एसजीपीसी ने मेरे को टैग करके कहा कि यू शुड बिहेव मोर रिस्पॉन्सिबल। तो मैंने उनसे ये कहा कि भाई, द रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। आप बताइए कि आपने क्या एक्शन लिया इनके खिलाफ, आप बताइए कि आपने इनके खिलाफ क्या कार्रवाई करी, इनको आपने गिरफ्तार किया, इनके ऊपर असॉल्ट का पर्चा दर्ज करवाया। पर्चा दर्ज हुआ नहीं हुआ बात की बात है, क्या आपने उसको आपने प्रोसीड किया। और मैं एक बात और बताता हूँ आपको अपर्णा जी, क्या हुआ कि अभी थोड़े दिन पहले, क्योंकि हिमाचल गवर्नमेंट ने पंजाब से आने वाली गाड़ियों पे जिसपे भिंडरावाले के झंडे लगे थे या स्टिकर्स लगे थे, उनको रोके उतरवाए इन रिटेलिएशन। और ये भगवंत मान के मुख्यमंत्री बनने की बात है। तो जितनी येलो प्लेट्स यानी कि कमर्शियल प्लेट की गाड़ियां जितनी भी हिमाचल से हरियाणा, सॉरी, पंजाब में एंटर कर रही थी, उनको रोक दिया गया। उनको रोक दिया गया, दे वर नॉट अलाउड टू एंटर पंजाब, और उनको आगे बढ़ने नहीं दिया गया। सो ये अगेन, दिस इज ओनली अ टीजर, दिस इज नॉट इवन अ ट्रेलर। तो फिल्म तो बहुत दूर की बात है। तो अगर विद इन द फेडरल स्ट्रक्चर, ऑर्डिनरी जो सिटीजन हैं हु आर लेट्स से चार्ज्ड और हु हैव अ मोटिवेशन, उनको पुलिस, लोकल एडमिनिस्ट्रेशन या लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन को हाथ में लेने की इजाजत दी जा रही है। आज वो केवल गाड़ियां रोक रही है। सी, आई एम अगेन नॉट ट्राइंग टू बी एन अलार्मिस्ट, बट आई वांट टू रिमाइंड यू कि पहले भी ऐसी होता था। पहले गाड़ियां रुकवाते थे, उनमें से लोगों को नीचे उतारते थे, उनको रिलीजन के बेस पे सेग्रीगेट करते थे और गोली मार के मार देते थे। सो अभी जो आप देख रहे हो, दैट इज फेज वन। अभी वो सिर्फ गाड़ी रुकवा रहे हैं। और रिटालिएशन इस बात की है कि क्यों आपने भिंडरावाला की पोस्टर, झंडे लगी हुई गाड़ियों को आपने हिमाचल में उतरवा दिया। तो उसके रिटालिएशन में यहाँ पे आपके गाड़ियों को रोका जा रहा है। तो व्हेन वुड यू एंटर द स्टेज टू, यू नेवर नो। नंबर एक बात है। नंबर दो बात है कि जब आपके जो लोकल सिटीजनरी है, यानी कि फर्ज कर लीजिए एक शहर है, चंडीगढ़ शहर है, चंडीगढ़ शहर के अंदर इफ यू आर एबल टू मोटिवेट अ मेजोरिटी ऑफ पीपल इन योर फेवर, आइडियोलॉजिकली स्पीकिंग, और मैं बात कर रहा हूँ कि उन बॉर्डर डिस्ट्रिक्ट्स की, उन बॉर्डर एरियाज की, जहां पे अगर ये लोगों के अंदर एक डिसकंटेंट अगेंस्ट द यूनियन गवर्नमेंट, डिसकंटेंट अगेंस्ट द स्टेट ऑफ इंडिया। देखिए, बात ये होती है कि कांग्रेस के खिलाफ बात नहीं होती, बात होती है भारत सरकार के बारे में। 1984 में जो हुआ उसके लिए मोदी को आज जिम्मेवार ठहरा रहे हैं, जबकि उस वक्त राजीव गांधी का था। सो आज भी जिस तरीके से ये तमाम चीजें चल रही हैं, दे आर नॉट अ वेरी गुड साइन। एंड knowing how अरविंद ऑपरेट्स, सी, अरविंद केजरीवाल की पार्टी, उनकी आइडियोलॉजी, इट्स प्योरली एक्सट्रीम लेफ्ट। दे आर नॉट इवन सेंटर ऑफ लेफ्ट, दे आर एक्सट्रीम लेफ्ट। दे हैव दे हैव अ कवर, ये जी हम आम आदमी पार्टी, बट देयर आइडियोलॉजी इज कंप्लीटली लेफ्टिस्ट आइडियोलॉजी। इनका जो वे ऑफ वर्किंग है, इट्स अ वेरी नासिस्ट और लेट्स से डिक्टेटोरियल वे ऑफ वर्किंग। वहां पे
उनकी बात मानी जाएगी तो ठीक है, उनकी बात नहीं मानी जाएगी तो चाहे वो आपके स्टेट के चीफ सेक्रेटरी हो, आप उनको घर में बुला के थप्पड़ लगा देंगे, आप उनको पीट लेंगे। सो ये इनका वर्किंग का स्टाइल है, ये तरीका है। और फाइनली आई वुड अगेन सम अप बाय सेइंग कि अगर आप आग के साथ खेल रहे हैं, तो आग या तो स्टेट को जला सकती है या आपको जला सकती है। दैट रियली डिपेंड्स ऑन हाउ पीपल वुड इवेंचुअली रिएक्ट। और मैं आई टाइम एंड अगेन ट्राई एंड मेक दिस एफर्ट, मैं बार बार यही कोशिश करता हूँ कि चेताया जाए, लोगों को बताया जाए कि पॉलिटिकल वैक्यूम था, उस पॉलिटिकल वैक्यूम को भरने के लिए आपने दोनों जो रवायती पार्टियां थी, चाहे वो कांग्रेस पार्टी है या श्रोमणी अकाली दल है, उसको आपने हटाया। बट जब तक आप इनके ऊपर वो स्ट्रॉन्ग चेक्स एंड बैलेंसेस नहीं रखेंगे, तब तक आप ये पाएंगे कि इवेंचुअली दे आर अ ग्रेटर इवल देन कांग्रेस एंड अकाली दल पुट टुगेदर। और इनको पहली बार पूर्ण राज्य मिला है। आई ओनली होप दैट भगवंत रियलाइजेस दैट as far as the constitutional mandates and powers are concerned, he is more powerful than the national convener of the Aam Aadmi Party and the Chief Minister of Delhi, Arvind Kejriwal. He is more powerful, and he should wake up and exercise his powers than becoming another Manmohan Singh. जैसा कि हम देख रहे हैं कि अभी तक जो हो रहा है कि पहले भगवंत को दिल्ली बुलाया इन्होंने, भगवंत दिल्ली गए, वहां पे जाके उनको ब्रीफ किया, उसके बाद ये प्रधानमंत्री जी के पास गए, जाके उन्होंने 50 लाख करोड़ का 50,000 करोड़ का पैकेज मांग लिया। अब वो पैकेज मांगना एक तरफ की बात है, आप अपनी स्टेट को डे टू डे बेसिस पे कैसे डील करेंगे? विल यू अलाउ समबडी लाइक राघव टू इंटरवीन इन योर डे टू डे फंक्शनिंग ऑफ योर स्टेट? या आप उसको अपने हाथ के नीचे रखेंगे? कितने एमएलए जिनको 10 में से आपने मंत्री बनाया है, वो दे विल अलाइन विद यू व्हेन यू टेक अ डिसीजन, बिकॉज़ गवर्नेंस इज ऑलवेज अ कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी। वो अकेला मुख्यमंत्री नहीं होता, वो पूरी कैबिनेट रिस्पांसिबल होती है। तो कलेक्टिव रिस्पांसिबिलिटी में वो 10 में से कितने लोग आपके साथ हैं और कितने लोग आपके साथ नहीं है। तो दैट आल्सो रियली डिपेंड्स के अलाइनमेंट्स कैसे पंजाब में आने वाले दिनों में बदलेगी। बट आई एम होपफुल, आई एम सैंग्विन के पंजाब विल नॉट फॉल इनटू द बैड टाइम्स एट इट एज इट फेल ड्यूरिंग द मिलिटेंसी पीरियड इन पंजाब। जो आतंकवाद का दौर था, उस दौर से, उस जमाने से पंजाब दोबारा ना गुजरे। पर आई आई पर्सनली फील आई एम होपिंग अगेंस्ट होप्स। अभी 4-6 महीने का हनीमून पीरियड निकलता है, उसके बाद लेट्स सी कि ये कितना रीन इन कर पाते हैं करप्शन को। बिकॉज करप्शन इन पंजाब ऑन अ गवर्नमेंट लेवल इज वन थिंग, बट जो जो कॉमन आप कह लीजिए बिजनेसमैन है या एक जो सामान्य नागरिक है, उसके जीवन से अलावा बिना देर आर लॉट ऑफ थिंग्स विच नीड्स टू बी डन इन पंजाब, स्पेशली रिवाइवल ऑफ द इंडस्ट्रियल सेक्टर, इन्वेस्टमेंट्स इन पंजाब, एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज इन पंजाब, बेटर हेल्थ केयर इन पंजाब। एंड बेटर हेल्थ केयर से मेरे मुराद ये नहीं है कि आप कि फ्री इलाज दें, आप फ्री इलाज मतलब वहां पे होना भी चाहिए। दे शुड बी इंफ्रा अवेलेबल टू ट्रीट दोज मेनी पीपल। तो स्कोप बहुत ज्यादा, लाइक आई सेड, वैक्यूम बहुत ज्यादा था, उस वैक्यूम को फिल उन्होंने किया है। विल दे बी एबल टू डू जस्टिस इज येट टू बी सीन। बट नोइंग हाउ केजरीवाल ऑपरेट्स एंड उसका उसका क्या उसके लिंक्स और कनेक्शंस रहे हैं, और बहुत सारी चीजें मैं आई एम होल्डिंग माई सेल्फ बैक हेयर कि उसके क्या लिंक्स एंड कनेक्शंस रहे हैं पास्ट में सेपरेटिस्ट के साथ, या जैसे उसने इंडियन आर्मी के ऊपर, इंडियन एयरफोर्स के ऊपर उसने प्रश्न चिन्ह खड़े करे, और कैसे उसने कश्मीरी पंडितों के जो साथ हुआ हादसा है उसका मजाक उड़ाया, किस तरीके से उसने खालिस्तानियों के साथ हॉपनॉप किया आज तक यहाँ पे पहुंचने के लिए, और कैसे वो जो मुस्लिम ब्रदरहुड कह लीजिए या पीएफआई कह लीजिए या सीएए के अंदर तमाम वो लोग जिन्होंने दंगा किया, जिन लोगों ने हत्याएं की, उन लोगों के साथ उसका आइडियोलॉजिकल एक सपोर्ट रहा, चाहे उसके अपने ही पार्टी के काउंसलर्स और एमएलए क्यों ना रहे हो। तो ये जो मुस्लिम एक्सट्रीमिज्म है, ये जो सिख एक्सट्रीमिज्म एक्सट्रीमिज्म है, जो थॉट्स के अंदर है, या जो जमीनी ऊपर आपको नजर आ रहा है, या जो बाहरले मुल्कों से सपोर्ट कर रहे हैं, चाहे वो फाइनेंशियली सपोर्ट कर रहे हैं, इन लोगों को जब ये सपोर्ट करते हैं और जब कश्मीरी पंडित विक्टिम बनते हैं, उनके इतनी बड़ी ट्रेजेडी हो जाती है, उसको आप मखौल में, आप हंसी में उड़ा रहे हैं। सो दैट रियली रिफ्लेक्ट्स हिज थॉट प्रोसेस, और वो किस तरीके की उनकी सोच है या किस तरीके का उनका अप्रोच है। वो राजनीतिक रूप से जब वो भाषण देते हैं, वो धीरे धीरे आराम आराम से सहज सहज बोलते हैं, वो मीठा मीठा बोलते हैं, वो लोगों को
अपनी बातों में चिकनी चुपड़ों में बरगलाने की कोशिश करते हैं। बट आई विल टेल यू एक बात मैं आज कहना चाहता हूँ, मेरे को मैं ऐसा महसूस करता हूँ, ऐसा नहीं कि आई एम प्रिडिक्टिंग दिस, बट आई एम टेलिंग यू दैट हिज डाउनफॉल विल स्टार्ट फ्रॉम पंजाब। पंजाब के लोग ना, पीपल कैन बी वेरी अनफॉरगिविंग। तो ये जो सब हरकतें ये कर रहे हैं, ही इज एक्सपोजिंग हिमसेल्फ। और मैं समझता हूँ कि इट्स अबाउट टाइम फॉर पीपल टू वेक अप, कि ये इससे पहले कि ये बहुत बड़ा एक चैलेंज बन जाए नेशनल सिक्योरिटी को लेके, इंटरनल सिक्योरिटी को लेके। और जैसे इन्होंने अलग अलग समय पे प्रोटेस्ट को सपोर्ट किया है और इन्होंने कवर किया है, चाहे वो पाकिस्तानी बेस्ड टेररिस्ट हों, चाहे वो इंडिया के अंदर डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले लोग हों, चाहे वो नॉर्थ अमेरिका यूके से बैठ के पंजाब में डिस्टर्बेंस क्रिएट करने वाले लोग हों, उनके साथ मिलके किया है। तो इट इट सीम्स कि ये आदमी और इनका जो पार्टी है, दे कैन बी अ नाइटमेयर फॉर द सिक्योरिटी एस्टैब्लिशमेंट एंड द स्टेबिलिटी एंड इंटेग्रिटी ऑफ द कंट्री। मेरा प्रश्न ये है कि गोवा में भी आम आदमी पार्टी ने बड़ा कैंपेन किया, लेकिन वहां तो एक भी सीट नहीं आई। और इससे पहले भी हम देखते हैं पंजाब से ही बड़ा प्रोटेस्ट हो रहा था कृषि कानूनों के खिलाफ, और कृषि कानून वापस भी ले लिए गए। उसके बाद भी सिख समाज ने बड़ा प्रोटेस्ट किया एक कुछ हद तक। तो क्या सिख समाज को भी आत्ममंथन करना चाहिए? क्योंकि गोवा में तो आम आदमी पार्टी की एक भी सीट कुछ नहीं आया, पंजाब में उन इलाकों में वोट मिला है और खालिस्तानी फंडिंग से अलेज्ड वोट मिला है जहां पे कोई कैंपेन नहीं किया। ओके सौरभ, तो मैं आपको दो तीन बातें यहाँ पे वाजे करता चलूं। पहली चीज ये है कि आप ध्यान से इस बात को ऑब्जर्व करना कि आम आदमी पार्टी वहां पे सक्सेसफुल हो रही है जहां पे एक पॉलिटिकल वैक्यूम था, और जहां पे बीजेपी एज सच वाज नॉट अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। जहां पे बीजेपी ऑल्टरनेटिव था, चाहे वो उत्तराखंड है, चाहे वो गोवा है, दो छोटे प्रदेश है। छोटे प्रदेशों में चाहे कितनी दिक्कतें थी, और मैं अपने आंकलन में समझ रहा था कि 13 से 15 से ज्यादा सीटें गोवा में बीजेपी को नहीं आएंगी, ऐसा मेरा आंकलन था। बावजूद उसके द पीपल ऑफ गोवा सरप्राइज। या आप ये मान लीजिए कि जो बीजेपी का स्ट्रक्चर है काम करने का, जो वर्किंग का उनका गोवा के अंदर नेटवर्क रहा, उन्होंने डिलीवर किया। एंड बीजेपी गॉट अ क्लियर मैंडेट इन गोवा। अब आगे बात उत्तराखंड की। अच्छा, बाय द वे, गोवा के अंदर सब जगह इनकी जमानत जब्त हुई है। अब आगे कर्नल कोश्यारी, ये कोटियाल, कर्नल कोटियाल इन उत्तराखंड। तो ये चीफ मिनिस्टरियल कैंडिडेट थे आम आदमी पार्टी के उत्तराखंड में। और मेरा ऐसा मानना है कि अगर ये आजाद भी लड़ते ना, तो ये आम आदमी पार्टी के सिंबल से ज्यादा वोट लेके आ जाते। तो पीपल ऑफ लेट्स से उत्तराखंड आर आल्सो मोर अवेयर, एंड बीजेपी वाज ऑलवेज अ क्रेडिबल ऑल्टरनेटिव। एक एक अच्छा ऑल्टरनेटिव थी बीजेपी वहां पे, इसलिए वहां पे उनकी सरकार बनी। पंजाब के अंदर वैक्यूम था, पोस्ट फार्म प्रोटेस्ट जो एक वॉइड क्रिएट हुआ। उस वॉइड के बाद बीजेपी का कोई बहुत ज्यादा ना तो पहले आधार था पंजाब में। बीजेपी, मैं जैसे हमेशा बोलता हूँ, बादल जनता पार्टी थी पंजाब में, वो बीजेपी अब बनी है इस बार अपने दम पे 67-70 सीटें लड़ने के बाद। दे हैव बिकम बीजेपी इन पंजाब। तो आने वाले समय में आप देखेंगे कि दे शुड इम्प्रूव, नंबर वन। नंबर टू, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हो कि आत्ममंथन की बहुत ज्यादा जरूरत है, थोड़ी सी नहीं, बहुत ज्यादा जरूरत है। और कई बार ये ऐसा होता है कि आपको ना एक डीप स्लंबर से बाहर निकालने के लिए सिर्फ चिल्लाना भर काफी नहीं होता, आपको फिजिकली एक चोटी काटनी पड़ती है, एक चूंटी काटनी पड़ती है। मुझे लगता है कि वो इनकी जो गवर्नेंस है इस बार, दैट विल एक्ट एज अ पिंच टू दी पब्लिक। और मेरे को लगता है कि आई एम होपफुल कि ऐसा कुछ मतलब अनट्रू ना हो पंजाब में। बट आई पर्सनली फील के थिंग्स विल टेक अ डाउन साइड, बिकॉज आप एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपीरियंस बिल्कुल जीरो है भगवंत को। आई इनफैक्ट मैं सिर्फ जब मैं कंपेयर कर रहा था भगवंत को मनमोहन सिंह जी से, दैट वाज ओनली एज अ क्वाइट और अ silent or a rubber stamp person, not as somebody who's capable as Manmohan Singh ji. Manmohan Singh ji is a very capable actor, whereas Bhagwant, on the other hand, is not even close in his administrative capabilities. तो ये दो चीजें मैं चाहता था मैं बाजी करता हूँ। और आप ठीक कह रहे हो, यस, बहुत ज्यादा आत्ममंथन, आत्मचिंतन की जरूरत है कि हम एज अ कम्युनिटी हम किस दिशा में जा रहे हैं। How much do you think has the farmers' protest contributed to Aam Aadmi Party's winning in Punjab?
lot of it actually. मतलब I can't term in percentages, but I can say a very very large chunk of it. See, basically क्या था मैं बताता हूँ. It was not just the political void which was created over, let's say, last half a millennia, पिछले 40-50 साल का जो void था, वो एक अलग चीज है, वो void अलग है. पर कैप्चरिंग द इमेजिनेशन ऑफ पीपल, नंबर एक, ये झूठे वायदे करके जो मेरे को नहीं लगता है पूरे कर पाएंगे, और वो वादे पूरे करने के लिए अगर पैसे मांगने केंद्र सरकार से थे, और आपको पता ही है कि सेंट्रल स्टेट रिलेशनशिप आपको यूनियन गवर्नमेंट के साथ अच्छा रखना पड़ेगा इन केस यू विश टू स्टैंड एनी चांस ऑफ गवर्निंग पंजाब है. और तीसरा, उस वॉइड को फिल करके अपने आप को वहां पे प्लेस करने में, और बेसिकली एक और फैक्टर बड़ा है. देखिए, ये 17 में भी अच्छा कर लेते अगर ये सुच्चा सिंह छोटेपुर को पार्टी से ना निकालते, और शायद ये 20 से 8 पे ना रह जाते, 12 लोग इनकी पार्टी छोड़ के ना जाते, ये अगर इनके पास एक अच्छी स्ट्रॉन्ग लीडरशिप होती पार्टी में. तो ये दो बातें. तीसरी बात ये है कि भगवंत बीइंग सन ऑफ द सॉइल, और लोगों के साथ उसका कनेक्ट अच्छा था, चाहे वो कॉमेडियन था चाहे कुछ था, मतलब ही वाज स्टिल इन द पब्लिक डोमेन. और उन्होंने जिस तरीके की बातें करी, जैसा मैं अभी आपको बता रहा था कि अरविंद ने बोला कि जी 1,70,000 करोड़ का बजट है, उसमें से 20% तो हमारा मतलब करप्शन में निकल जाता है, तो 34,000 करोड़ वो, 20,000 करोड़ माफिया के, सैंड के, मतलब वो सब तमाम बातें. और एक बड़ी, मतलब आपको पता है, नेगेटिविटी टेक्स ऑन वेरी क्विकली इमेजिनेशन ऑफ पीपल. अगर आप बोलोगे कि जैसे वो बाबा रामदेव ने बोला था, ठंडा मतलब कोका कोला, नहीं, मतलब वो टॉयलेट क्लीनर, कोका कोला टॉयलेट क्लीनर. सो मतलब नेगेटिविटी कैप्चर्स योर इमेजिनेशन वेरी क्विकली. तो उन्होंने बहुत सारी नेगेटिव बातें करी, चाहे उन्होंने खजाने को पीपा बोला, चाहे उन्होंने अलग अलग समय पे अलग अलग नेताओं के बारे में बड़ी पर्सनल टिप्पणियां करी. आई डोंट वांट टू रिपीट दैट. और बहुत सारी बातें उन्होंने ऐसी करी हैं, वो ही वाज एबल टू कैप्चर द माइंड्स ऑफ पीपल. और जब फ्लोटिंग वोटर होता है, जो फर्स्ट टाइम वोटर है कह लीजिए, या जो किसी पार्टी के साथ अलाइंड नहीं, और इस बार तो मतलब झाड़ू भी क्या चली, इस बार तो मतलब लिटरली वैक्यूम ही चल गया था. और वो वैक्यूम इसलिए चला था बिकॉज देयर वाज अ मेजर वॉइड. उतना बड़ा वैक्यूम था नहीं पंजाब. So if a farmers protest can do that, what are the chances that in future they will not pick up another issue and then another and then another? देखो, ये तो मैंने आपको इसलिए तो मैं कहा था कि दे माइट प्रूव देमसेल्व्स टू बी अ नेशनल सिक्योरिटी नाइट. उसका कारण भी यही है ना कि इनकी जो सारी राजनीति है वो एनार्किस्ट है. अब आपको याद होगा कि योगेंद्र यादव ने क्या कहा था. योगेंद्र यादव ने ये कहा था कि यार वो कानून वापस कराना उतना बड़ा मोटिव नहीं था, जितना बड़ा मोटिव था कि बीजेपी को हराना और बीजेपी का वोट शेयर कम करना, और यूपी के अंदर जो है नॉन बीजेपी गवर्नमेंट को लेके आना, बिकॉज यूपी ड्राइव करती है नेशन को. तो ये एक, जब आप कैंडिडेट एडमिशन कर लेते हैं और आप उन लोगों के बारे में बात कर रहे हैं कि जो सोनिया गांधी के एडवाइजरी कमेटी में रह चुके हैं, आप उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जो इस प्रोटेस्ट का फेस बन के उभरे, जिन्होंने बार बार अलग अलग समय पे प्रेस कॉन्फ्रेंसेस को एड्रेस किया, तो उन लोगों की बात कर रहे हैं कि जिन लोगों ने संयुक्त किसान मोर्चा के नाते से अपने आप को आगे रखा, और संयुक्त किसान मोर्चा यू नो वाज द फेस ऑफ द प्रेस्ट. तो इसके अंदर ये हुआ था कि लास्ट में उन्होंने बोला कि यार ना तो गुरनाम सिंह चुरूनी, और ना ही दर्शन पाल, और ना ही कोई और जो है उग्राहा वगैरह आगे आ रहे हैं. लेट्स वोट फॉर आम आदमी पार्टी इन ब्लॉक, और हमने इस बार बीजेपी को सबक सिखाना है. लिटिल डिड दे नो, उनको इस बात का शायद मेरा ख्याल है कि अंदाजा नहीं था कि सरकार में बनने के पहले 2 हफ्ते के अंदर ही जो है वो पहुंच जाएंगे केंद्र में कि जी अब हमारे को आप 1 लाख करोड़ रुपए दे दीजिए, और हमारे को नेशनल सिक्योरिटी का सवाल है, हमारे को पैकेज चाहिए. पैकेज का मतलब होता है कि हम वापस वापस नहीं करेंगे. उन्होंने लोन्स की रिस्ट्रक्चरिंग की बात नहीं करी, उन्होंने लोन्स की रीपेमेंट के अंदर या उन्होंने कुछ समय के लिए जहाँ पे बोरोइंग है वहां पे उन्होंने टैक्स रिलीफ नहीं, सॉरी इंटरेस्ट रिलीफ नहीं मांगा. उन्होंने सीधा ही बोल दिया कि जी हमारे को 50,000 करोड़ का पैकेज चाहिए, लाख करोड़ रुपए का 2 साल का पैकेज चाहिए. तो पैकेज मीन्स कि वो पैसा आ रहा है और दोबारा कहीं वापसी करना नहीं है उन्होंने. बट ये है कि हमने जो अपनी फिजिकल डिसिप्लिन है उसको नहीं सुधारना हमने. और चीजें देखो, अब जैसे ये आई वॉश ही है एक तरीके से, कि आप कह दीजिए कि साहब एमपी एमएलए को एक टर्म की पेंशन मिलेगी, मिल जाएगी एक टर्म की, क्या फर्क पड़ता है. इट डजंट मैटर. हाउ डज इट इंप्रूव द स्टेट्स. अब आप ये बताइए कि जहां पे आपको 30,000 40,000 एम्प्लॉइज की तनख्वाह देनी आपको मुसीबत हो रही है, वहां पे अगर आप 50 या 60 लोगों की एक बार की 2 बार की पेंशन हटा भी दें, क्या गोली चलती है उससे. विल नॉट बी एबल टू फिल द गैप. तो ये सब बहुत सारा कुछ जो है ना, सिर्फ ओनली फॉर द ऑप्टिक्स, और हकीकत में नीचे उतरते हुए वो चीजों को कहीं आप सही से इम्प्लीमेंट कर नहीं पाएंगे. Thank you very much Right. for a very nice talk, and you brought back my memories of my stay in Adampur between Jalandhar and Hoshiarpur in 85, 86, 87. I've seen those,
Khalistan movement days. I was in Amritsar on the day when Govind Ram, Inspector General, I mean IG, I think he was blown up. Anyway, so my question is, it's a very scary picture, the ideological terrorism perpetrated or let loose by Arvind Kejriwal, and are people falling for it. So what is going to happen in Delhi in the coming inspection? Because I'm not seeing any either Congress or BJP building up a very strong leader as well as a party mechanism. How do you read the situation? See, I'll tell you how it is. Arvind's way of working in Delhi has been, Karnik sir, is whoever is the chief ministerial candidate in Delhi, he will target them straight away. अब आपको याद होगा कि शीला दीक्षित के टाइम पे क्या हुआ कि शीला दीक्षित के टाइम पे अभी वो निर्भया का जो gang rape or eventual brutality and her murder which led to her death वो हुआ he used it, उसने अपने सब कैंपेन्स में उसको यूज किया और ऑटो रिक्शा के पीछे लिखा रहता था कि आपको चाहिए साफ सरकार या आपको चाहिए बलात्कार. सो एक तरफ उन्होंने अपनी तस्वीर, दूसरी तरफ शीला दीक्षित की तस्वीर लगा के ही मतलब कंप्लीटली डिमोलिश शीला दीक्षित. और मैं आपको बता दूं कि शीला दीक्षित मतलब आई एम नो सपोर्टर ऑफ कांग्रेस और शीला दीक्षित पर से, बट जितना डेवलपमेंट का काम दिल्ली के अंदर शीला दीक्षित के 15 साल में हुआ, अगर आप कंपेयर करके देखोगे 7 साल में उसका इसने 5% भी नहीं करके दिखा रखा. He's not even spent money on schools, colleges, hospitals, जितना कुछ बोलता है, he's not done any of it. मोहल्ला क्लिनिक के ऊपर उन्होंने पैसे के जितने भी खर्चे हैं, all went down the drain. So my point is then जब बीजेपी ने पिछले इलेक्शन में किरण बेदी को अपना चीफ मिनिस्टर कैंडिडेट, चीफ मिनिस्टर फेस बनाया, तो उसने फिर सीधा शीला दीक्षित की जगह किरण बेदी को हेड ऑन टेक ऑन करना शुरू कर दिया. बात ये नहीं है कि वहां पे कोई लीडर है, यानी बात ये है कि वहां पे लीडरशिप की एक वॉइड है आज भी दिल्ली के अंदर. और मैं समझता हूं कि अगर पूरे फोर्स के साथ, पूरी ताकत के साथ कोई भी एक अच्छी पॉलिटिकल पार्टी वहां पे एक मूवमेंट क्रिएट करती है और अभी से क्रिएट करती है, तो दे विल बी एबल टू गिव हिम अ गुड चैलेंज इन 2025 के चुनाव में. एक अच्छा चैलेंज दिया जा सकता है. और बाय दैट टाइम दे विल बी इन अबाउट 3 years ऑफ गवर्नेंस इन पंजाब. तो 3 साल के अंदर पंजाब की गवर्नेंस में और इनके 10 साल का जो एंटी इनकम्बेंसी है पुट टुगेदर, there is a very good opportunity for the opposition to come back to power in Delhi, and this is very possible, this is very workable. But again यही होता है कि जैसे ही आप चीफ मिनिस्टर फेस दे देते हो, ये उस बंदे को, उस आदमी को, उस चेहरे को ये ही starts to attack. That's his way of working, that's his functioning style. आपको मतलब it is not easy though, but yes, it is workable, it is possible. I was in Vasant Kunj. My daughter lives in Vasant Kunj. I was talking to many. They're all chartered accountants and working in this thing. Even such people had fallen for Kejriwal's sweet talks or whatever it is. I'm wondering. I'm amazed how this man can fool so many people so many times. That's all I'm saying. It's not a question, but it's my amazement, bewilderment. I'm bewildered that this man can. I heard his speech in the parliament, castigating BJP with reference to Kashmir files. Terrible. It was so hitting below the belt sort of a. And the people are laughing. I was painful. This is very painful. Thank you. That's his real face. That is his real face. Any communist, as a matter of fact, sir, अगर आप if you put together World War I, World War II and subsequent wars together, you will find that communism as an ideology has killed more humans, has taken more human lives put together than any war has. So for communists, for people with Arvind's mindset, the human lives don't matter. तो चाहे बंगाल में कोई मर रहा है, चाहे गॉड फॉरबिड पंजाब में कोई मरे कल को, इट डजंट मैटर टू हिम. दिल्ली उसके अपने इस प्रदेश में अंडर हिज ओन वॉच पीपल डाइड, ही इज नॉट बॉदर्ड. 1990-91 में कश्मीरी पंडित एक्सोडस में 5 lakh plus people lost their homeland, many lost their lives, and he can laugh about it. So that's his real face. उसकी सच्चाई तो यही है ना सर, but it will take time for people to see through it. And I have observation या जो भी कहिए, जो मुझे किसी बात से कुंठा होती है वो ये है कि ये केजरीवाल के जो ये प्रॉमिसेस होते हैं कि फ्री में ये फ्री में वो,
वो क्या नेशनल कैरेक्टर बिल्टअप कर रहा है कि हिंदुस्तान में सब भिखारी हैं, उनको भीख में देते रहिए और देश चलेगा? कब तक चलेगा? हम तो और गड्ढे में गिरते जाएंगे। तो हमें कुछ ऐसा करना चाहिए कि जिससे कि हम जागरूक हों, हम अपने टैक्स दें, हम अपने बिल्स पे करें। ये फ्री के लिए हम क्यों ऐसी पार्टी को लाते हैं कि जो काम कुछ नहीं करती? कुछ सालों बाद आपको सड़क नहीं मिलेगी क्योंकि पैसा नहीं है सड़क ठीक करने को। तब आप क्या करोगे? घर बैठे नहीं, सिर्फ उसके लिए प्रमोद जी, उसके लिए मोदी जी है ना, तो वो सड़कें तो मोदी बनवाएगा या गडकरी जी बनवाएंगे या उसके लिए तो यू हैव अ सेंट्रल गवर्नमेंट ना, नंबर वन। नंबर टू, यस, ये जो स्टाइल ऑफ गवर्नेंस है, इट्स अ वेनेजुएलियन स्टाइल ऑफ गवर्नेंस। ही वुड टर्न द एंटायर स्टेट इनटू कराकस, और यही होगा कि साहब, फ्रॉम फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव स्टेट और फ्रॉम अ प्रोग्रेसिव कंट्री यू बिकम, जैसे कहते हैं कि कंप्लीटली डिपेंडेंट। और डिस्पाइट बीइंग रिसोर्स रिच एंड एवरीथिंग, वो मिसमैनेजमेंट जो है या जो फ्री के डोज है। सी व्हेन यू, हम भी जैसे कहते हैं कि बेटा कोई बात नहीं, तुम्हारे नंबर लग जाएंगे, जाओ, तुम्हारे पापा बोल देंगे मैम को, पास हो जाओगे आप, तो बच्चा पढ़ना छोड़ देगा। Similarly, as a society or as a community put together, if you get into the habit of not paying your bills and knowing that somebody like Kejriwal would come and promise you freebies, वो कितने डिलीवर होंगे नहीं बात की बात है, बट जस्ट द थॉट ऑफ इट कि पढ़ना नहीं पड़ेगा, मेहनत नहीं करनी पड़ेगी, बिजली के बिल नहीं देने पड़ेंगे, 1,000 रुपए घर बैठे फोकट में मिल जाएगा, so on so forth. So that obviously does not build any national character. As a matter of fact, it destroys whatever little is left of it. And I don't know why or if at all people fell for that 1,000 rupees dole or that 300 unit free ki bijli. But we are a community in Punjab, like our Karnik ji says that he was there in Punjab. You would know कि हम लोग तो we would give away for free. आपको गुरुओं की बनाई हुई एक पद्धति ऐसी है कि nobody who lives in the vicinity of Gurdwara Sahib can sleep empty stomach. खाली पेट कोई सोएगा नहीं, मतलब खाने के लिए, पहनने के लिए. There is a strong sense of community spirit and there is no dependence. And we are the people who have defended this land for thousands and thousands of years. कई हजार साल तो we have taken the brunt of these Muslim invaders coming from the west. तो उसके बाद भी मतलब हम लोगों ने अंग्रेजों से टक्कर ली और मुगलों से टक्कर ली, वी केप्ट फाइटिंग। बट अब ये एक कैरेक्टर ऐसा बिल्ड कर देना कि जी पॉकेट का सब कुछ एंड फ्री का ये, सो दैट एक्चुअली यू आर राइट प्रमोद जी, डिमिनिशेस और डिस्ट्रॉयज व्हाटएवर लिटिल इज लेफ्ट ऑफ इट। इट्स नॉट अ गुड आइडिया, इट्स नेवर अ गुड आइडिया। कहीं पे भी अब जैसे कार्मिक जी कह रहे थे कि चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं, मतलब फ्री में मतलब इनिशियली तो अच्छा लगता है, बट इट्स ऑलवेज सेड देयर इज नेवर अ फ्री लंच और अ फ्री डिनर। वो तो यू आर ऑलवेज द प्रोडक्ट, आप ही बिक रहे हो। मेरा सवाल रणनीति ये है कि आपने एक बहुत बेसिक इशू पर वो पॉइंट आउट किया है, वो एनार्किज्म जो है वो केजरीवाल का। अनफॉर्चुनेटली जो हम देख रहे हैं, ये एनार्किज्म सिर्फ केजरीवाल तक ही अब लिमिटेड नहीं रह गया है। हम वेस्ट बंगाल में देख रहे हैं, वो इसके भी एक बड़े और ज्यादा खतरनाक रूप में पनप रहा है, बहुत आगे बढ़ चुका है। नीचे साउथ में फिर वो भी टेंडेंसी बन रही है, तेलंगाना हो या और दूसरे राज्य हो। महाराष्ट्र में भी जो रूलिंग ग्रुप है, उसके एटीट्यूड जो हम देख रहे हैं, उसमें वो जो एनार्किज्म है, वो एलिमेंट बड़ी स्ट्रांगली आ रहा है। तो अगर ये एक नेशनल फिनोमिना बनता है, तो क्या आपको लगता है कि इस वक्त जो सरकार में है, जो मोदी गवर्नमेंट है, नरेंद्र मोदी है, और अनफॉर्चुनेटली ये जितने भी मैंने नाम लिए हैं, ये हो या और बिहार हो या और बहुत जगह पर, वो सब मोटिवेटेड हैं एंटी मोदीज्म से। तो ये एक मुझे डर लगता है कि ये इट इज गोइंग टू बी ए नेशनल डिजीज, जो विच विल गो बियॉन्ड अरविंद केजरीवाल। तो क्या हम इस पोजीशन में हैं कॉन्स्टिट्यूशनली या पॉलिटिकली कि इस सिचुएशन से हम बच सके? Constitutionally, yes, we are always in the position. There is no doubt. And Vijay ji, आपने बोला politically, people of the country decide. So
मतलब अगेन जो लोगों का फैसला होता है, whichever way the people eventually vote, ये चीजें जो है ना वो बहुत सारा कुछ जो है कि किसी के हाथ में होता नहीं। और मैं आपसे सहमत हूँ, तमिलनाडु, केरला, महाराष्ट्र एंड वेस्ट बंगाल, these are the states which I would categorically mention, जो इस वक्त एक डिफरेंट पाथ पे चल रहे हैं। बट अगेन लाइक यू सेड, इसके अंदर पॉलिटिकली तो जनता के हाथ में है। और आपने कहा एक आपने वर्ड यूज किया, एंटी मोदीइज्म। सो आई टेल यू हाउ इट इज। मोदी तमिलनाडु में जाके इलेक्शन कंटेस्ट किया, उनको वो मेजोरिटी नहीं मिली। तमिलनाडु में व्हाट इज एंटी मोदी? इट इज ओनली एन आइडियोलॉजी। व्हाट इज मोदीज आइडियोलॉजी? मोदीज आइडियोलॉजी इज प्रो नेशन। He's done everything to build the defenses of this country. He's done everything to eradicate corruption from the system. May not be successful to 100%. Let's agree, एक मिनट के लिए हम मान लेते हैं कि 100% वो अभी नहीं कामयाब हो पाए in the second term. But does that mean you start killing people of a certain religion? Or does that mean, like in Tamil Nadu, बंगाल में लोगों को मार दीजिए आप, तमिलनाडु में आप मंदिरों को तोड़ दीजिए, और केरला में आप बीजेपी आरएसएस के काडर को मार दीजिए, और महाराष्ट्र में आप इनको पॉलिटिकली जिसे कहते हैं कि आप जिसे वेंडेटा कहते हैं उसको लीजिए, कि आप पर्चे दर्ज कर दीजिए, आप पुलिस से हरास कर लीजिए। इट डज नॉट नेसेसरली मीन दैट। दिस इज अ साइन ऑफ वीकनेस, एंड a sign of strength is when you can face up to somebody and you can contest it, you can fight it. और दिल्ली की बात कर लीजिए, अरविंद की। अरविंद को अगर अग्निहोत्री से कोई प्रॉब्लम थी, विवेक से, तो वो बोल देते कि साहब मैं आपकी पिक्चर को टैक्स फ्री नहीं करूंगा। व्हेन ही सेज कि आप यूट्यूब पे डाल दो, फ्री में कर लो। तो आप अपना मतलब तमाम सारी चीजें हैं। अब जब पिछले 4 दिन से यहाँ मीम चल रहे हैं कि जितनी भी महिलाएं हैं जो 18 साल से ऊपर की हैं, वो यूट्यूब पे अपना अपना चैनल खोल लीजिए, उनको 1000 रुपये महीना यूट्यूब से आता रहेगा। सो दैट्स अगेन नॉट द पॉइंट। द पॉइंट इज कि आप उसके बैकग्राउंड में जाइए, और अगर आप ये फाइंड करते हैं एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन, यू फील कि यस, मोदी डिजर्व्स दिस हेट एंड मोदी हैज डन एवरीथिंग रॉन्ग टू डिजर्व द आयर ऑफ पीपल, और मोदी के कारण बंगाल के अंदर हिंदुओं का लार्ज स्केल पे कत्लो गारत होना चाहिए, इट्स जस्टिफाइड। अगर आपको लगता है कि मोदी के कारण तमिलनाडु के अंदर टेम्पल्स को तोड़ देना चाहिए, आपको लगता है कि आंध्रा के अंदर टेम्पल लैंड्स को, चर्चेस को दे देना चाहिए, आपको लगता है कि तेलंगाना के अंदर मुस्लिम्स आर क्लास 1 सिटीजन एंड हिंदूज आर क्लास 2 सिटीजन, और आपको लगता है कि महाराष्ट्र के अंदर जो मैंडेट आया था, बाय द वे इट्स अ प्री पोल अलायंस एंड द मैंडेट वाज फॉर अ coalition between the Shiv Sena and the BJP. The mandate was not for this Mahavikas or Mahavinas Aghadi, whatever you should call it. तो अगर आपको लगता है, then you vote against Modi again, but you feel कि ये सारा जो वोट है eventually it comes to politics, no? तो अगर आपको लगता है कि what is going on is not correct or is incorrect, then you vote wisely the next time. You need to make a political decision, and it's the general public which takes a decision. 5 स्टेट में से 4 स्टेट बीजेपी ने जीते हैं। देयर हैज टू बी रीजन फॉर दैट। यूपी रिपीटेड फॉर द फर्स्ट टाइम, एंड उत्तराखंड द सिटिंग चीफ मिनिस्टर लॉस्ट बट द पार्टी वॉन। और गोवा में तो कोई एक्सपेक्टेड नहीं था हमारे लिए, मतलब एज एनालिस्ट वी थॉट कि गोवा इज नॉट गोइंग टू कम इन बीजेपी's डायरेक्शन, इट्स गोइंग टू बी 13-15 मैक्सिमम, एंड इनको जोड़ तोड़ के सरकार दोबारा बनानी पड़ेगी। मणिपुर वाज अगेन अ सरप्राइज। सो पीपल ऑफ दिस कंट्री कैन एक्चुअली रिप्लाई बैक in a different way altogether. ऐसा जरूरी नहीं कि हर एक चीज के अंदर प्रधानमंत्री जी को रिप्लाई करना है, या गृह मंत्री जी को रिप्लाई करना है, या मुझे आपको रिप्लाई करना है। इस देश की जनता खड़े होकर जवाब देगी, और वो जो जवाब है सबसे स्ट्रॉन्ग जवाब है। कॉन्स्टिट्यूशनली बात आती है, हाँ 356 357 दोनों इंप्लीमेंट हो सकते हैं, लगाई जा सकती है, सरकार को टॉपल किया जा सकता है, बट आई डोंट सी मोदी जी डूइंग इट। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजंस। प्रॉब्ली ही इज टू डेमोक्रेटिक फॉर दीज पीपल। ये जितना उनको फासिस्ट और जितना मोदी जी को बोलते हैं कि ये हिटलर है, ये ऑथोरिटेरियन है, ये डिक्टेटोरियल है, ही इज क्वाइट ऑन द कॉन्ट्ररी वेरी डिफरेंट। क्वाइट ऑन द कॉन्ट्ररी वेरी डिफरेंट। ही इज एक्चुअली शोड अ लॉट ऑफ टॉलरेंस। उतनी की जरूरत नहीं है। ही इज नॉट टॉपल्ड वन गवर्नमेंट। बट अगेन एक चीज और है इसके अंदर दिलचस्प जो है, वो ये है कि द सुप्रीम कोर्ट हैज नेवर स्टूड बाय द यूनियन गवर्नमेंट, whether it was any protest or whether it is any constitutional crisis.
अब आप बताइए सीएए के दौरान वो मतलब व्हाट वाज द पॉइंट सेंडिंग ऑब्जर्वर्स? फार्म प्रोटेस्ट के दौरान व्हाट वाज द पॉइंट? वो कमेटी बना दी, दी प्रोटेस्टर्स रिफ्यूज टू एक्सेप्ट दैट कमेटी, इंटरलोकेटर्स बना के भेज दिए। क्यों बनाए? Either you decide on law, either it is bad in law, it's good in law. Judicial overreach है, there are a lot of problems. If you remember, ये जो रास्ते बंद हुए थे सिंगू बॉर्डर पे, the Supreme Court allowed it to continue. The Supreme Court not for once, एक बार भी सुप्रीम कोर्ट ने बोला कि आप हटाइए यहाँ से, आपको रास्ते बंद करने का अधिकार है। बोला कि आपको प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, उन लोगों को प्रोटेस्ट करने का अधिकार है, मेरे को सड़क पे चलने का अधिकार नहीं है। So that's how the Supreme Court decides. क्या कर लोगे आप? Sir, I couldn't agree with you more because मेरे को यही लगता है ये 56 इंच सीना and all that. What did it do in CA protest? What did it do in farmers protest? Why could not Arvind Kejriwal, for that matter, send why like the Home Minister, the Delhi Chief Minister, none of them intervened. None of them said कि उठाओ यहाँ से, आप पुलिस भेजिए या किसी भी तरह की जबरदस्ती की। नहीं, आप गलतफहमी में हो। मैं दोबारा बताता हूं आपको, अब आप सुनिए अपर्णा, ये माननीय सर्वोच्च न्यायालय, इट्स ऑल अपॉन द सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया। आप सुनिए ना, आप मेरे को बताइए, इंटरलोकेटर्स सीएए प्रोटेस्ट में इंटरलोकेटर्स लगाने की जरूरत थी जब उन्होंने शाहीन बाग में रास्ता बंद कर रखा था? वो बता सकते थे कि ब्लॉकेड ऑफ रोड इज गुड इन लॉ और बैड इन लॉ। आप एक जगह डिसाइड कर लीजिए, वहां बैठ जाइए। सिमिलरली इन फार्मर्स प्रोटेस्ट, द सुप्रीम कोर्ट अलाउड इट टू हैपन, इट वाज अंडर देयर वॉच। और सरकार क्या कर लेगी, आपका पुलिस क्या कर लेगी? दे कांट गो बियॉन्ड द कोर्ट। जब कोर्ट ने कह दिया आपको बैठने का अधिकार है, उसके बाद आप मार ही नहीं सकते किसी को, क्या बोलोगे? एंड दैट वाज प्रिसाइसली द सिचुएशन दे वांटेड। आप देखिए ना कि 26 जनवरी को क्या हुआ, दे वांटेड द पुलिस टू रिटेलिएट। और आपको वो, अगर आपने ध्यान से देखी है वो जो टूल किट है, तो उसमें दे हैड टू चेंज इट फ्रॉम सेवरल पीपल किल्ड टू वन किल्ड, एंड दैट टू वाज ओवरटर्निंग ऑफ अ ट्रैक्टर। एनीवे, हाँ जी, आप कुछ कह रहे थे। Okay, yeah, no, you just answered me because my question was कि why should it even go to the court? Somebody sitting in the middle of the road is wrong, just remove him. मतलब मेरा ये कहना है कि why should it even go to the court? Everything eventually goes to the court. अगर वहां पे आप देखिए, मैं ना आपको एक बात बताता हूँ, आई डोंट नो हाउ यू, इनफैक्ट लेट इट बी, इनफैक्ट जाने दीजिए, बिकॉज बहुत एक्सट्रीम हो जाएगा जो मैं बोलूंगा, बट द पॉइंट इज के everything goes to the court. Even somebody who's caught on camera killing people on the VT station, ठीक है, क्लियर था ये लोग कहां से आए हैं, उनके एडमिशन के बाद उसकी फांसी रुकवाने के लिए 3 बजे कोर्ट खुलता है। सो अपना जी, एवरीथिंग गोज टू द कोर्ट। मतलब ये कहना कि वो बाद में जाएगा कोर्ट, पहले जाएगा कोर्ट, क्या होगा? और ये टेस्टिंग वाटर्स है। एक बार अगर पोस्ट कह लीजिए रिमूवल, अब जैसे आप मेरे को बताइए कि अब कोर्ट ने क्या किया? यूपी में दंगे हुए, यूपी में दंगों के अंदर लोगों की प्रॉपर्टी जब्त हुई, उनकी प्रॉपर्टीज को कुछ को डिमोलिश भी किया गया, कुछ के ऊपर बहुत बड़े जुर्माने डाले गए, फाइन्स डाले गए। कोर्ट ने क्या किया? सब ओवरटर्न कर दिया। तो एवरीथिंग विल गो टू द कोर्ट इवेंचुअली। हम, आप नहीं लेके जाओगे, मैं नहीं लेके जाऊंगा, तो कोई और लेके जाएगा। सो इट इज फॉर द कोर्ट्स टू डिसाइड कि इसको मैंने टच करना है या नहीं करना है। बट देयर इज अ जुडिशियल ओवररीच इन दिस कंट्री। कोर्ट्स तो हर एक चीज में घुसते हैं ना, एंड दे हैव टू गिव एन ओपिनियन ऑन एवरीथिंग। मतलब there are so many instances, I don't want to quote, जहां पे सुप्रीम कोर्ट feels कि it's obliged to hear on an urgent basis a matter which is absolutely insignificant, whereas something which is to do with a very large number of citizens of this country, उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट कहती है कि यार अभी हमारे पास टाइम नहीं है सुनने के लिए। तो मतलब there is no judicial accountability. Who do you think has infiltrated into the judicial system to make it this way, anti-national? नहीं, देखो क्या है ना कि मेरे और आपके पास एक वी डोंट हैव द पावर ऑफ कंटेम्प्ट। द सुप्रीम कोर्ट एंड द विधानसभा, स्पीकर विधानसभा, इन लोगों के पास कंटेम्प्ट की पावर है। मैं कुछ बोलूंगा तो कंटेम्प्ट की प्रोसीडिंग चालू कर देंगे। तो द मिलॉट्स देमसेल्व्स, हु एल्स डू यू थिंक? द आइडियोलॉजिकल इन्फिल्ट्रेशन in the judicial system is so deep,
एंड ये हम बार बार डायनेस्टीज की बात करते हैं पॉलिटिक्स में, हम कहते हैं कि ये परिवारवाद खत्म होना चाहिए, तो जुडिशरी से भी परिवारवाद खत्म होना चाहिए। जुडिशरी में भी तो डीप रूटेड है परिवारवाद। I have a question and a remark from one of our participants. My question is related to political vacuum. What will happen to the political vacuum of Punjab once AAP is out? Who will fill it? That really needs to be seen over the course of next 5 years. See, you need to work hard. You need to, as a political outfit or as a political party, you need to be amongst the people. You have to share their pain, sorrow, grief, happiness, delight, everything. You have to be with the people all the time. You have to be one amongst them. You can't be a class apart. जैसा कि अकाली दल में हुआ, the Badal family became a class apart. They become, let's say, the modern day monarchs. Same thing happened with the Congress people. ये लोग they became so disconnected. They became so disconnected. They forgot about how people react to small events और कैसे लोग महसूस करते हैं, वो भूल गए ये चीज़ें। आपको लोगों के बीच में रहना पड़ेगा, आपको मेहनत करनी पड़ेगी, आपको काम करना पड़ेगा। You have to remain on the grassroots and you have to bring leadership from the grassroots. ऐसा नहीं कि आपने उठा के ऊपर से किसी को पहुंचा दिया। जैसे अब ये 5 राज्यसभा में एमपीज पंजाब से जा रहे हैं, they have been actually on the post. तो ये ऐसा मतलब पैराशूट नहीं होना चाहिए कि कोई छत्तीसगढ़ से आ रहा है तो कोई इज अ नोन हिस्ट्री शीटर, ये सब नहीं चाहिए। रिमेन विद द पीपल एंड पहली चीज तो ये है कि वेदर देयर विल बी अ वैक्यूम क्रिएटेड एट ऑल और नॉट, उसके लिए भी मेहनत करनी पड़ेगी ना। यू हैव टू कीप द पीपल अवेकेंड एंड अप्राइज्ड। नहीं तो वो रोज सवेरे एक फुल पेज ऐड आएगी, दिन में 24 घंटे में से 8 घंटे अरविंद केजरीवाल के ऐड चलते रहेंगे, तो कहाँ वैक्यूम